Good morning, students. Today we will start from page number 74, chapter 5, 1 centimeter. Now we will begin from here. She hands over the tickets nonchalantly. The conductor asks, "Are you going to claim these back?" No. In fact, Tao Ying ought to have kept the tickets so that the next time there is a picnic or an outing at work, she could use her bicycle and then claim back to the fare with the stops. Both she and her husband are blue-collar workers, and any saving would have been a help. But Xiaowei is a smart boy and might well question her aloud. "Mama, can we claim back tickets even when we are on a private outing?" In front of the child, she would never lie. So now, here is the description, conversation of Xiaowei and Tao Ying. Okay? She hands over the tickets nonchalantly because of she was not happy at all. That is why nonchalantly word is used for her, because of she was not happy to purchase a ticket, as his son, her son is saying again and again that Mama purchased a ticket for me, and she has purchased a ticket for him, but she was not happy at all. So she hands over the tickets nonchalantly. Conductor is demanding for the ticket and she was not happy at all, but she has given hand over the tickets to him. उसने वो tickets उसको दे दी. The conductor asked, "Are you going to claim these back?" It means conductor is saying here that, "Are you going to claim these bags, these back tickets?" Then no. In fact, Tao Ying ought to have kept the tickets so that the next time there is a picnic or an outing. वास्तव में क्या था? Tao Ying ought to have kept the tickets. Tao Ying वो टिकट्स रखना चाहती थी अपने पास, एंड उसका पर्पस क्या था इस टिकट को रखने का? So that the next time there is a picnic, अगर कोई next time picnic हो या फिर कोई outing हो at work, okay, and she use her bicycle and then claim back the fare with stuffs. यानी उन टिकट्स को क्लेम कर लेगी वो अपनी कंपनी से. Okay, that is why she wants to put the ticket. कि अगर वो बाइसाइकिल यूज करेगी जाने आने के लिए तो फिर क्या करेगी, उसके प्लेस पर वो टिकट को क्या करेगी, दिखा देगी. ओके, सो शी हैज यूज्ड दिस टिकट्स, दैट इज व्हाई शी वांट टू पुट दैम. लेकिन फिर भी उसने उन टिकट्स को वापस दे दिया इसको, कंडक्टर को. नाउ बोथ शी एंड हर हस्बैंड आर ब्लू कॉलर वर्कर्स. इट मीन्स दोनों ही फैक्ट्री वर्कर्स थे, दोनों ही ब्लू कॉलर वर्कर्स थे. इट मीन्स जो कि स्मॉल सिंपल वर्क करने वाले वर्किंग पर्सन होते हैं, लेबर्स जिनको बोलेंगे, वो थे. तो दैट्स वाई वो ब्लू कॉलर वर्कर होने की वजह से, एंड एनी सेविंग वुड हैव बीन ए हेल्प. जरा बहुत पैसा भी वो अगर सेव कर लेते थे तो ये इससे उनकी हेल्प हो जाती थी. यानी कि उसके लिए टिकट परचेस करना भी एक बड़ी बात थी, और अगर उन टिकट से कुछ पैसा वो बचा लेती थी तो वो एज ए सेविंग यूज करती थी. ओके, नेक्स्ट. बट Xiaowei is a small, sorry, but
Xiaowei is a smart boy and might well question her aloud. Now, Xiaowei is a very smart and clever boy. That is why he is asking to her mother. What he is asking to her mother? That and might question her aloud. And he is speaking loudly there. देखो, वो बच्चे जो होते हैं, जो क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं, वो क्लियरली दूसरों के सामने भी कह देते हैं, बिकॉज ऑफ दे डोंट नो व्हाट शुड से इन फ्रंट ऑफ अदर्स और व्हाट शुडंट. ठीक है, अब क्या है, वो क्या क्वेश्चन पूछता है, मम्मा कैन बी क्लेम बैक टिकट्स, क्या हम टिकट्स को क्लेम कर सकते हैं, मतलब वापस उसको क्लेम करके पैसा ले सकते हैं, इवन व्हेन वी आर ऑन ए प्राइवेट आउटिंग. ये तो हमारी प्राइवेट आउटिंग है, वो बिकॉज ऑफ दे आर गोइंग फॉर एंजॉयमेंट, दे आर गोइंग टू टेम्पल, वो टेम्पल जा रहे थे, तो ये तो उनकी प्राइवेट आउट गोइंग थी. बट बच्चा जो था वो इतना समझदार था, इतना क्लेवर था, दैट इज व्हाई ही वाज आस्किंग देयर. एक क्वेश्चन पुट अप करता है कि मम्मा क्या हम इन टिकट्स को भी क्लेम कर लेंगे, जबकि ये गलत है कि अगर हम कंपनी के काम से या कि वर्किंग प्लेस के काम से कहीं जा रहे हैं तभी हमें क्लेम करना चाहिए, अदरवाइज उन टिकट्स को क्लेम नहीं करना चाहिए. बट ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन लाउडली इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, शी वुड नेवर लाई. और बच्चे के सामने वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगी. And it is exhausting to follow rules dictated by parental guidebooks all the time. But Tao Ying is determined to be the ideal mother and create a perfect example for her son to look up to. Now, it is exhausting to follow rules. It is very complicated to follow all the rules and regulations. Whatever we explain in front of others, and whenever we use them, there is difference between them. दोनों के बीच में अंतर होता है. जब कभी हम कि दूसरों के सामने कुछ रूल्स और रेगुलेशन का डिस्क्रिप्शन करते हैं और कई बार उनको अपने पर लागू करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में कई बार डिफरेंस हो जाता है. तो नाउ ताओ यिंग जो है कह रही है कि इट इज एग्जॉस्टिंग, ये बहुत थका देने वाला होता है, टू फॉलो रूल्स डिक्टेटेड बाय पेरेंटल गाइड बुक्स, कि जब कभी भी हम फॉलो करने लग जाते हैं रूल्स और रेगुलेशंस विच बी डिक्टेटेड टू आवर चिल्ड्रन, जो कि हम अपने बच्चों को डिक्टेट करते हैं, बताते हैं उन रूल्स के बारे में, बाय पेरेंटल गाइड बुक्स के अकॉर्डिंग. देखिए, हम उनको बहुत सारी चीजें बताते हैं बच्चों को कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, या हमें इस तरीके के कोई भी बात अगर हम कहते हैं कि हमें किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए. बट पेरेंट्स को जब नीड होती है तो वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ देते हैं और वो इस तरह से वर्क करने लग जाते हैं, मतलब इट मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं चीजों को. बट जो बच्चे होते हैं उनको अगर हम एक बार बता देते हैं कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, तो दैट इज वाई दे ऑलवेज वांट टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने पेरेंट्स को कहीं भी जाकर, किसी के भी सामने जाकर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उनके पेरेंट्स जो हैं वो असैम्ड हो जाते हैं ऑन दैट टाइम, और उनको लगने लगता है कि हमने अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इस पर हावी तो कर दिया, यानी उसके सिर पर डाल तो दिया, बट हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाते हैं उनके क्वेश्चन से. और जैसे कि ताओ यिंग जो थी एग्जॉस्ट हो गई थी उसके क्वेश्चन से, बट शी हैज गिवन दिस rules and regulations, that is why she cannot change them. Okay, so the guide books all the time, यानी हम पेरेंट्स क्या करते हैं, गाइड बुक्स में से हर वक्त अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बताते रहते हैं. बट ताओ यिंग इज डिटरमाइंड टू बी द आइडियल मदर. लेकिन ताओ यिंग जो थी वो बहुत डिटरमाइंड थी. फॉर व्हाट? शी वांट्स टू बी एन आइडियल मदर. वो क्या बनना चाहती थी? एक आइडियल मदर बनना चाहती थी. एंड क्रिएट अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर हर सन टू लुक अप, यानी वह अपने बच्चे के सामने
एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि मैं एक आइडियल मदर हूं और मैं एक एग्जाम्पल हूं, एक परफेक्ट मदर का एग्जाम्पल हूं अपने बेटे के सामने। दैट इज वाई शी वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट रिगार्डिंग फॉर दिस। यानी इस मामले में वो बहुत सारे एफर्ट्स करती है, बहुत प्रयास करती है कि वो हमेशा एक आइडियल मदर बन के दिखाए। So that is why she needs really to concentrate living this way as not unlike carrying an audience with you wherever you go. She needs really to concentrate. अब देखिए, वास्तव में जरूरी था रियली टू कंसंट्रेट करना। लिविंग दिस वे इज नॉट अनलाइक कैरिंग एन ऑडियंस। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें हम खुद अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं करते हैं, कई बार रूल्स और रेगुलेशंस, पर हम बच्चों को सिखा देते हैं, तो जो ऑडियंस होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो जब इस बात को सुनते हैं और हम उस रूल्स और रेगुलेशंस को जब फॉलो नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। ओके, विद यू वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी तुम जाते हो तो तुम्हारी बात को सुनने वाले लोग भी होते हैं। ओके, वो आपकी बात को सुनते हैं। तो दैट इज वाई यू शुड अवेयर। आप उतने ही बातें बच्चों को बताएं। इससे एक मोरल लेसन और मिलता है हमें कि हम इतना न कहें बच्चों को, इतना ज्यादा न कहें कि वो हमें ही शिक्षा देने लग जाएं और बाहर जाके वो हमसे ही कहने लग जाएं ये बात। सो दैट इज वाई कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हैं और जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर ऑथर ये डिस्क्राइब करना चाहता है कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इफ यू आर गिविंग टू योर चिल्ड्रन, देन you should be follow all the rules and regulations also। और ऐसी कंडीशन में जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर सकते, तब आपके बच्चे ही दूसरों के सामने आपके लिए ऐसा बोलते हैं जिससे कि आप बहुत शर्मिंदा हो जाते हो। नाउ बट हर एक्शंस आर फुल ऑफ लव एंड टेंडरनेस। अब देखिए, मदर जो होती है, माँ जो होती है, उसके अंदर सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती है लव एंड टेंडरनेस, यानी प्रेम और सॉफ्टनेस। ओके, तो मदर जो है वो अपने बेटे से इस तरह से वो ताओइंग बहुत ज्यादा प्यार करती थी उसको। दैट इज वाई वो इस तरीके का कोई व्यवहार करना नहीं चाहती थी जिससे उसका बेटा जो है वो नाराज हो और अनहैप्पी हो। तो दैट इज वाई but her actions are full of love and tenderness. Here the description of the Taoing character, that she is a loving lady and full of tenderness. For instance, whenever she eats a watermelon in front of Ziaoe, अब देखो, जब भी वो जियाओए के सामने वाटरमेलन खाती थी, ठीक है, तो ऑन दैट टाइम जब वो वाटरमेलन खाती थी तो उसका बिहेवियर क्या होता था इन फ्रंट ऑफ जियाओए? शी वुड टेक केयर नॉट टू वाइट टू क्लोज टू द रेंट, इवन दो शी डजंट एक्चुअली थिंक देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द फ्लैश एंड द स्किन। देखो, जब जियाओए के साथ सामने जब वो वाटरमेलन खाती थी तो क्या करती थी वो? केयर नॉट टू वाइट टू क्लोज टू द रेंट, इवन दो, देखो, जो रेड वाला पोर्शन होता है और जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है, स्किन होता है उसका, तो कई बार इतना टेस्टी वाटरमेलन होता है कि उसका लास्ट स्किन तक लोग खाने लग जाते हैं। इट मीन्स ग्रीन वाला पोर्शन भी वो कई बार यूज कर लेते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के सामने बहुत अवेयर रहती थी उसको खाने के वक्त वाटरमेलन को, कि ऐसा ना हो कि बच्चा देखे और देखे कि वो लास्ट पॉइंट तक, स्किन तक उसको खा रही है, दो शी डजंट एक्चुअली थिंक देयर इज मच डिफरेंस। हालांकि वो क्या सोचती थी कि देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द फ्लैश एंड द स्किन, यानी फ्लैश और स्किन के बीच में उसे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता था। बट जब अपने बेटे के सामने वो खाती थी तो ऑन दैट टाइम
उस समय वो बहुत ही सावधानी से देख कर खाती थी कि किस तरह से उसे खाना चाहिए। ट्रू, द स्वीटनेस ग्रेडुअली diminishes as you work your way through the red towards the green. But every part of the melon is equally refreshing. In any case, the skin of a melon is supposed to have a beneficial cooling effect, and it is often used as a medicine. Now, the author is using a beautiful example of watermelon. Watermelon is has a quality of cooling and beneficial quality of cooling. So that is why the author is using a best example. Just as through the sweetness gradually diminishes, this is the reality that gradually our sweetness stopped or diminishes. कहने का मतलब ये है, हमारी जो मधुरता होती है, जो हमारी सॉफ्टनेस होती है, वो धीरे 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 कम होती जाती है. Although it is very beneficial for you also. कूलिंग कई बार बहुत कूल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी स्वीटनेस में थोड़ा कमी आ जाती है, लेकिन हम उसी तरह से बेनिफिशियल रहते हैं जिस तरह से वाटरमेलन का सारा पार्ट बहुत कूलिंग होता है और बेनिफिशियल होता है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड क्यों ना हो. ओके, ग्रीन वाला पार्ट है वो भी उतना ही बेनिफिशियल है. आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो आउटर प्लेस होता है फ्रूट्स का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज वाई वाटरमेलन का आउटर पार्ट भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है जैसा कि रेड पार्ट है. रेड पार्ट कैसा होता है? स्वीट होता है. दैट इज वाई एवरीबडी वांट्स टू टेक इट और ईट इट. ओके, बट जो ग्रीन तक पहुंचता है, वही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ट्रू द स्वीटनेस ग्रेडुअली डिमिनिशेस. सच्चाई है कि जो मिठास है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, डिमिनिशेस होती जाती है एज यू वर्क योर वे थ्रू द रेड टुवर्ड्स द ग्रीन. यानी तुम्हारा जो कर्म करने का तरीका होता है वो रेड से किस साइड चला जाता है? ग्रीननेस की तरफ. ग्रीननेस की तरफ क्यों चला जाता है? जब मैच्योरिटी आ जाती है पर्सनालिटी में, देन उसके अंदर हार्डनेस ज्यादा हो जाती है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर्स न्यू कमर्स. देखिए, जब उसमें कटिंग हो जाती है, आप वाटरमेलन को काटेंगे, जब उसका ऊपरी हिस्सा खाएंगे, इट्स सो टेस्टी, बहुत टेस्टी होता है वो, और उसका कलर भी रेड होता है. लेकिन जैसे जैसे उसको नीचे तक काटते चले जाते हैं, उसका कलर ग्रीन हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है. समझ रहे हैं ना? तो ऑन दैट कंडीशन क्या है, क्या कहना चाहता है ऑथर आपको? बट एवरी पार्ट ऑफ मेलन इज इक्वली रिफ्रेशिंग. हालांकि हमारा वर्क का जो तरीका होता है वो रेड से किसकी तरफ चला जाता है? ग्रीन की तरफ, हार्डनेस की तरफ, सॉफ्टनेस से हार्डनेस की तरफ. जैसे कि वाटरमेलन जो है स्वीटनेस से हार्डनेस की तरफ यानी ग्रीननेस की तरफ चला जाता है रेडनेस से, एंड बट एवरी पार्ट ऑफ इक्वली रिफ्रेशिंग. लेकिन जो लास्ट का पार्ट है वो भी आपके लिए उतना ही रिफ्रेश होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि स्टार्टिंग का स्वीट वाला. इन एनी केस द स्किन ऑफ अ मेलन इज सपोज टू हैव ए बेनिफिशियल कूलिंग इफेक्ट. अब देखिए, इन एनी केस अगर हम दूसरे मामले में देखते हैं, द स्किन ऑफ ए मेलन is supposed to have a beneficial. जो स्किन होती है वाटरमेलन की वो मोर बेनिफिशियल होती है, कूलिंग होती है, उसका इफेक्ट बहुत कूलिंग होता है, एंड इज ऑफन यूज्ड एज मेडिसिन, और इसका यूज एज अ मेडिसिन किया जाता है. समझ रहे हैं? तो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. One day she came across her son eating a melon in the same manner she did. When Xiaowei looked up, Tao Ying could see a white melon seed stuck to his forehead. She was furious. Who taught you to gnaw at the melon like that? Are you going to wash your face in it too? Xiaowei was terrified.
The small hand holding the melon began to the tremble, but the big round eyes remained defiant. जैसा हम बिहेवियर करेंगे वैसा ही बिहेवियर पाएंगे. ओके, तो क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों को लेके. इफ दे डोंट नो हाउ टू eat with fork and spoon, how can they say to their children that you should use it, you should use it. okay, वो खुद नहीं जानते हैं कि कांटे से और छुरी से कैसे खाया जाता है, स्पून से कैसे खाया जाता है, लेकिन वो एटिकेट्स और मैनर्स का पूरा लवादा उड़ा देते हैं अपने बच्चों के ऊपर, और दे इम्पोज्ड ऑल द थिंग्स ऑन देयर चिल्ड्रन, और बेचारों की मासूमियत जो होती है वो खत्म हो जाती है. तो ऑन दैट टाइम क्या हो रहा है इसके अंदर भी यही है. वन डे शी केम अक्रॉस अ सन, एक दिन वह अपने बेटे के साथ ईटिंग ए मेलन, एक मेलन वाटर मेलन खा रही थी. द सेम मैनर शी डिड, उसने भी वैसा ही किया जैसा कि वह करती थी. When जियाओ लुक्ड अप, जब जियाओ ने ऊपर देखा तो ताओइंग ने क्या बोला है उससे, could see a white melon seed stuck to his forehead. और क्या था कि एक व्हाइट कलर का जो सीड था वाटरमेलन का वो इसके फॉरहेड पे लग गया था, चिपक गया था जाके. एंड शी वाज फ्यूरियस, इस बात पे वो नाराज हो गई वो. ओके, जब इस बात पे वो नाराज हो गई, हु टॉट यू टू इग्नोर, बोलने लगी कि किसने सिखाया तुम्हें इस तरीके से वाटरमेलन खाना. आर यू गोइंग टू वॉश योर फेस इनटू इट, इट मीन्स कि तुमने इतना किस तरीके से वाटरमेलन खाया, अपना पूरा मुंह के अंदर वाटरमेलन के अंदर डाल दिया. इट मीन्स जैसे कटिंग करते हैं उसको तो हम लोग उसके अंदर कई बार उसमें मुंह लगाकर, आप देखिए हम लोग क्या है इस तरीके के हो रखे हैं, पहले हम भी नेचुरली खाया करते थे, बट अब उसके पीसेस काट कर उसको अलग अलग पीसेस में डिवाइड करके उसको नमक डाल के मतलब अलग तरीके से फॉर्क से खाने लग गए हैं. बट वो टेस्ट नहीं आता है. और वही चीज थी कि वो बच्चा जो था जब वाटरमेलन खा रहा था तो उसके सिर पर वो व्हाइट कलर का बीज लग गया. क्या मालूम उनकी मदर भी इसी तरह से खाती हो. बट नाउ शी इज सेइंग, लेकिन वो अपने बेटे से क्या कह रही हैं, हु टॉट यू टू मेलन लाइक दैट, इस तरह से किसने कहा तुम्हें वाटरमेलन खाने के लिए. आर यू गोइंग टू वॉश योर फेस इन इट टू, क्या तुम अपना चेहरा भी इसमें धो लोगे. जियाओ वाज टेरिफाइड, बेचारा जियाओ डर गया. एंड द स्मॉल हैंड होल्डिंग द मेलन बिगेन टू ट्रेम्बल, अब उसका छोटा सा हाथ जो था वो कांपने लगा. कैसे, उस मेलन को लेने में. बट द बिग राउंड आईज रिमेन डिफाइंड, लेकिन उसकी बड़ी गोल आंखें रिमेन डिफाइंड, अभी भी डिफाइंड कर रही थी, अभी भी अस्वीकार कर रही थी. क्या अस्वीकार कर रही थी, उसका मूड नहीं था. किस चीज का मूड नहीं था उसका कि वो उस कट करके वाटरमेलन के पीसेस अलग कर करके खाए. उसका मन था वो उसी वे से वाटरमेलन खाएगा जैसा कि वो खा रहा था. ओके, नाउ चिल्ड्रन आर द बेस्ट इमिटेटर्स इन द वर्ल्ड. संसार में सबसे अच्छे जो इमिटेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं. कैसे, क्योंकि उनको कोई भी वर्क करके दिखा दो, दे ऑलवेज कॉपी इट. ओके, एंड फ्रॉम देन ऑन ताओइंग realized that if she wanted her son to behave as if he was the product of a cultured home. अब देखिए ताओइंग जो थी वो क्या करती थी, always want to show off because of she wants to be an ideal mother. वो एक आदर्श माँ बनना चाहती थी अपने बेटे के सामने. दैट इज भाई उसकी क्या हैबिट थी, हर वक्त क्या करती रहती थी वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा एग्जाम्पल देती थी जिससे कि वो हायर क्लास सोसाइटी से लगे और उसका बिहेव बहुत अच्छा बताया जाए. रियलाइज दैट इफ शी वांटेड हर सन टू बिहेव एज इफ ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ ए कल्चर. अब वो ये चाहती थी कि मेरा बेटा या मैं एक कल्चर्ड सोसाइटी से बिलोंग करने वाले दिखाई दें. दैट इज वाई वो बार बार इसी तरीके के कुछ ना कुछ यूजेस किया करती थी, एक्सपेरिमेंट किया करती थी. एक्चुअली वो जो चीज नहीं है उस चीज को बाहर लाना चाहती थी.
वो कल्चर्ड सोसाइटी की बनना चाहती थी। एंड देन शी मस्ट कंसंट्रेट एंड नेवर फेल इन हर ओन एग्जाम्पल। और वो हमेशा इस बात का देन शी मस्ट कंसंट्रेट, वो समझती थी कि हमेशा मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, कंसंट्रेट रहना चाहिए किस चीज पर, नेवर फेल इन हर ओन एग्जाम्पल। अपना एग्जाम्पल देने में वो कभी पीछे नहीं रहती थी कि मैं इस तरह से, कई बार मदर्स ऐसे बोला करते, मैं इस तरह से करती थी, मेरा नेचर ऐसा था, तो दैट इज वाई शी ऑलवेज से टू हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से भी हमेशा ऐसे कहती है कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट, लाइक शूटिंग डाउन एरोप्लेन्स विद अ स्मॉल गन। और ये बहुत कठिन था, क्या, जिस तरह से एक एरोप्लेन को शूट करना एक छोटी सी गन से, बहुत बहुत टिपिकल होता है। बट विद डिटर्मिनेशन शी न्यू दैट नथिंग वाज इम्पॉसिबल। लेकिन शी वाज वेरी स्ट्रांग लेडी, इस चीज का हम भी कहेंगे, हमने पूरे कैरेक्टर में इस चीज को देखा कि ताओइंग जो है वो बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रांग कैरेक्टर लेडी है, और जो कुछ भी वो कहती है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ही कॉन्शियस है वो लेडी टू बी एन आइडियल मदर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Next page we will discuss tomorrow. Thank you. Have a nice day all of you. Now I want to close.